Pranam dear students, my name is Ajay Singh. I am here to teach you biology. So in your NDA exam, 10 questions will be asked from biology sections. So actually beta, there is not specific biological term is written in your NDA syllabus. The term which is used, that is journal science. So in your GAT exam, that is journal aptitude test, total number of questions are 150 questions, out of which 150 questions beta 10 questions will be from biology, and the topics include in your NDA syllabus regarding biology. These are first living and non-living, second one that is cell, the basic unit of life, then tissue, then reproduction, both in plants and animal beta, how the plants reproduce, how the animals reproduce, body systems, then epidemics and the preventions also. Then we have to study about the nutrition beta, what is nutrition, food, nutrient, balanced diet. Then eighth beta solar system, in this we have to study about the eclipses. Ninth one universe. Ninth is achievement of eminent scientists. So our today's topic beta, today we will study about the living and non-living. So before starting the main topic beta, first thing, what is biology? You have to know about that. What is biology? So simple, the branch of science which deals with the study of living organisms. Study of living organisms, that is biology, simple. Who gives the term biology? The term biology, that is first used by scientist Lamarck and Treviranus. Next, who is the father of biology? Aristotle. सो मेन बेटा, देर आर 3 ब्रांचेज इन बायोलॉजी. बायोलॉजी के अंदर 3 ब्रांचेज हैं. बॉटनी, दैट इज स्टडी ऑफ प्लांट. जूलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल्स. एंड थर्ड माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. So who is the father? If someone asks who is the father of botany, so you answer Theophrastus. Zoology, same, Aristotle. So father of biology Aristotle, father of zoology specifically पूछा जाता है तो Aristotle. Who is the father of microbiology? Then Anton von Leeuwenhoek. Anton von Leeuwenhoek. He is the father of microbiology, Anton von Leeuwenhoek. Zoology, Aristotle. And botany, Theophrastus. तो botany, that is study of plants. Zoology, zoo, animals, चिड़ियाघर जाते हो, animals होते हैं. And logy terms, that comes from logos. Logos means study. And micro का मतलब होता है छोटा, same microbiology, that means study of microorganisms. So beta, all the living organisms are made up of chemicals beta. So these are inorganic chemicals or molecules or organic.
सो व्हाट आर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक? तो जिसमें भी कार्बन प्रेजेंट होगा दैट इज ऑर्गेनिक, इफ कार्बन इज प्रेजेंट, एंड इफ कार्बन इज नॉट प्रेजेंट दैट इज इनऑर्गेनिक। तो हम ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स है बेटा, सभी कार्बन का सोर्स है, बिकॉज आपने पढ़ा है कैटिनेशन की कार्बन की ही प्रॉपर्टी है। सेल्फ लिंकेज की अगर मैं बात करूँ, पीएच कैसे मेंटेन होता है? पीएच हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, सो दैट इज मेंटेन बाय एसिड बेस इक्विलिब्रियम। मूवमेंट कैसे होती है लिविंग्स के अंदर? सो मूवमेंट दैट इज बाय डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, दैट इज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल, सो दैट इज बाय डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अगर मैं लाइट की बात करूं, सो लाइट क्या करती है बेटा? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्या करने के लिए? दैट विल इंड्यूस द डेफिनेट पैटर्न, इंड्यूस डेफिनेट पैटर्न्स ऑफ रिस्पॉन्सेज। जैसे हम रात में सोते हैं, दिन में जगते हैं, स्लीप वेक साइकिल बेटा, हार्मोन होता है दैट इज पीनियल ग्लैंड जो सिक्रीट करती है बेटा मेलाटोनिन हार्मोन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है स्लीप वेक साइकिल के लिए। एनिमल्स में वो हार्मोन्स पढ़ेंगे तो उसमें हम करेंगे वो चीज़। सो मेन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं जो लिविंग को डिफाइन करती है कि वेदर द थिंग इज लिविंग और नॉन लिविंग बेटा? सो दीज आर फर्स्ट प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, so whether the protoplasm is present or not. So what is protoplasm beta? That is nucleus plus cytoplasm and all the organelles which are involved in the cytoplasm beta. nucleus के अंदर जो लिक्विड होता है that is called nucleoplasm, जो कि हम आगे पढ़ेंगे सेल टॉपिक में। साइटोप्लाज्म के अंदर लिक्विड साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनील्स जो कि फ्लोट करते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, लाइसोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सो प्रोटोप्लाज्म यू हैव टू लर्न दिस, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म बेटा। प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, सेकंड सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, सेल मिलके क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड वन दैट इज़ न्यूट्रिशन बेटा, जो फूड हम खाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स फूड कंज्यूम करते हैं, नॉन लिविंग कंज्यूम नहीं करते। फोर्थ वन जैसे कि मेटाबॉलिज्म है। सो व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म बेटा? मेटाबॉलिज्म के अंदर दो चीज़ें होती हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन बेटा। बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं मेटाबॉलिज्म, तो क्या होता है? दो टाइप्स, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। सो व्हाट इज़ कैटाबॉलिज्म बेटा? कैटाबॉलिज्म के अंदर ब्रेक डाउन होता है, जितनी भी ब्रेक डाउन रिएक्शंस होती हैं, ब्रेक डाउन रिएक्शंस, जैसे कि हम क्या ईट करते हैं बेटा? फूड हम ईट करते हैं तो फूड का ब्रेक डाउन होता है, दैट मीन्स डाइजेशन होता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म ब्रेक डाउन होगी डाइजेशन में, सिंपल फॉर्म में। एनाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है बेटा? फॉर्मेशंस होती हैं। सो बॉडी में ब्रेक डाउन रिएक्शंस होती हैं एंड बिल्डिंग रिएक्शंस होती हैं बेटा। सो एनाबॉलिज्म जैसे कि हम प्रोटीन्स खाते हैं, पल्सेस हम खाते हैं, तो अमीनो एसिड्स उसमें होता है, अमीनो एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं? बॉडी में प्रोटीन्स बनाते हैं जो कि मसल्स के लिए ज़रूरी हैं। तो मेटाबॉलिज्म बेटा लिविंग को डिफाइन करती है प्रॉपर्टी। फिफ्थ की अगर मैं बात करूँ, ग्रोथ बेटा। सो ग्रोथ इज़ नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बेटा। अगर एक्चुअल में पूछा जाता है ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग की या नहीं है, सो ग्रोथ इज़ नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। बिकॉज क्या होता है बेटा, अगर मैं बात करता हूँ माउंटेन्स की, तो माउंटेन्स का साइज़ भी इंक्रीज़ होता है बेटा, उस पर सोयल डिपोजिशंस होती हैं। तो बाय द टाइम कि ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन माउंटेन का साइज़ तो इंक्रीज़ होता है। सो नॉन लिविंग थिंग्स का भी साइज़ है वो इंक्रीज़ होगा, लेकिन लिविंग थिंग्स के अंदर अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो उसके साथ क्या चीज़ जुड़ जाती है बेटा? डेवलपमेंट। सो दैट मीन्स डेवलपमेंट होगा, चाहे वो डेवलपमेंट फिजिकल हो या वो मेंटल हो या हार्मोनल हो, यानी कि हम क्या करते हैं बेटा? इवोल्व करते हैं, ठीक है, इवोल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट की मैं अगर बात करूं, सो दैट इज रिप्रोडक्शन बेटा। सिक्स्थ वन बेटा रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन बेटा दैट इज ऑल्सो नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बेटा। लिविंग थिंग्स में रिप्रोड्यूस बेटा रिप्रोड्यूस करते हैं, या दैट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस। बट अगर पूछा जाता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, सो ग्रोथ इज
ऑल्सो नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, एंड रिप्रोडक्शन भी नहीं होगी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बेटा, जैसे कि हमने किया क्या, देयर इज़ हिनी, म्यूल। सो हिनी हमने बनाया, किस किस के बीच में क्रॉस कराया बेटा, हिनी हमने क्रॉस कराया फीमेल डंकी एंड मेल हॉर्स, एंड म्यूल बेटा वो हमने बनाया किस किस के बीच में क्रॉस कराया, दैट इज मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स। सो बोथ आर स्टीराइल बेटा, दैट मीन्स दे कांट रिप्रोड्यूस, दोनों रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, स्टीराइल है। तो रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक्सक्रीशन। सी लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा एक्सक्रीट करते हैं, मतलब कि रिमूव करते हैं अपना वेस्ट। नॉन लिविंग रिमूव नहीं करते बेटा वेस्ट को। नेक्स्ट मैं बात करूं लाइफ स्पैन। सो स्पेसिफिक लाइफ स्पैन होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कि वो बर्थ जन्म लेते हैं बेटा, रिप्रोड्यूस करते हैं, यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, एंड देन डेथ बेटा, मर जाते हैं। सो देयर इज स्पेसिफिक लाइफ स्पैन बेटा। नेक्स्ट मैं बात करूँ रेस्पिरेशन, दैट मीन्स ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन करते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन नहीं करते। नेक्स्ट मैं बात करूं बेटा जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज होम्योस्टैटिक रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट। सो होम्योस्टेसिस वर्ड किसके लिए यूज होता है बेटा, दैट इज यूज्ड फॉर स्टेडी इंटरनल कंडीशंस, यानी कांस्टेंट इंटरनल एनवायरमेंट। जैसे कि अपनी बॉडी के अंदर है बेटा, इंटरनल कंडीशन स्टेबल होगी, सो दैट मीन्स होम्योस्टेसिस मेंटेन्ड है। तो होम्योस्टेटिक रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट, रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट को क्या बोलते हैं बेटा, स्टिमुलाई। सो क्या चीज़ है बेटा इसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी स्टिमुलस होता है, हीट है, कोल्ड है, टच है, प्रेशर है, उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड नहीं करते। लेकिन फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा बेटा, जैसे कि कोमा पेशेंट जो होता है, या इसी के साथ हम कॉन्शियसनेस को भी लिंक कर सकते हैं। सो राइट, इन कोमा पेशेंट्स के अंदर क्या होता है बेटा, वो कॉन्शियस नहीं है लेकिन वो लिविंग में काउंट होगा। क्यों, आप उसको टच करते हो, उसको फील नहीं होता, लेकिन क्या चीज़ होगा, जो हम उसको ड्रग देते हैं, मेडिसिन देते हैं, उसका तो इफेक्ट उसकी बॉडी में होता है, ठीक है, जिसके कारण वो ठीक हो पाता है। सो कोमा पेशेंट्स क्या होते हैं बेटा, अनकॉन्शियस है लेकिन लिविंग के अंदर आएगा, ठीक है, क्योंकि वो रिस्पॉन्ड करता है बेटा, इंटरनली केमिकल्स को रिस्पॉन्ड करता है वो। नेक्स्ट मैं बात करूं बेटा, जैसे अडेप्टिबिलिटी है, तो हम क्या करते हैं, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करते हैं, दैट इज अडेप्टेबिलिटी। सो वी विल अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट बेटा। तो जैसे गर्मी होती है तो हम क्या करते हैं, कम कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं बेटा, सर्दी होती है तो हम ज़्यादा कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। सो अडेप्टिबिलिटी दैट इज़ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेटा। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती। सो बिल्कुल बेटा स्मॉल सा छोटा सा टॉपिक था जो हमें लर्न करना है। अब क्वेश्चंस जैसे इससे पूछे जाते हैं, अपने को लर्न करना है, साइंटिस्ट के नेम अपने को लर्न करने हैं बेटा, कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है वो अपने को लर्न करना है। जैसे कि मैं बात करूँ, ग्रोथ जो है एंड रिप्रोडक्शन है, दैट इज़ नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, यानी लिविंग की प्रॉपर्टी है लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ग्रोथ फिजिकल ग्रोथ होती है नॉन लिविंग्स के अंदर। जैसे माउंटेन का मैंने एग्जांपल दिया कि माउंटेन का भी साइज जो होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज होता है, कि जो सोयल होती है भैया आके डिपॉजिट होती है माउंटेन्स पे, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम माउंटेन का साइज भी ग्रो होता है बेटा, लेकिन वो फिजिकल ग्रोथ होगी। माउंटेन्स में कैसी ग्रोथ होगी, ओनली फिजिकल ग्रोथ। हम लिविंग की बात कर रहे हैं, सो ग्रोथ इज इन ऑल द एस्पेक्ट्स, फिजिकल, मेंटल और हार्मोनल ग्रोथ, यानी कि इवोल्व हम होते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो बेटा जैसे कि हीनी एंड म्यूल है, दोनों लिविंग हैं लेकिन दोनों स्टीराइल हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। या कई जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, कपल्स होते हैं, वो भी यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं कर सकते कोई भी एबनॉर्मलिटी के कारण। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो नॉन लिविंग है, लिविंग है। तो इसलिए हमने बोला रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो क्वेश्चन
रेयरली है, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। अगर मैं क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वेश्चंस आपको बोलूं, सो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोमोट्स सिमिलैरिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग promotes similarity in living organisms. And your options will be classification of organisms, B option natural selection by environment, option C is inheritance from common ancestor, and option D is homeostatic regulation. So what will be your answer बेटा कि विच प्रोमोट्स सिमिलैरिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलैरिटी को प्रोमोट करता है। तो क्या चीज़ प्रोमोट करती है? जैसे सिमिलैरिटी बोले तो क्या चीज़ बेटा, हम लिविंग है, ह्यूमंस हैं, सभी एक जैसे हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सभी की सेम है, तो क्या चीज़ है जो उसको बढ़ावा देती है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स नहीं, कि हम ऑर्गेनिजम्स को क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। आपको पता है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, फैमिली, स्पीशीज़ की क्लासिफिकेशन हमने किया हुआ है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। नेचुरल सिलेक्शन की बात करें, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, तो क्या उससे सिमिलैरिटी आती है? नहीं, सिमिलैरिटी नहीं आती। इनहेरिटेंस फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, कि हमारा एंसेस्टर कॉमन है तभी तो हम सिमिलर हैं, बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा बेटा। सो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। होम्योस्टेटिक रेगुलेशन, की होम्योस्टेटिक रेगुलेशन जिसके कारण क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर स्टेडी इंटरनल कंडीशंस मेंटेन होती हैं, तो उसका भी कोई लेना देना नहीं है कि हमारे बीच में सिमिलैरिटी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलैरिटी होती है। सो इनहेरिटेंस फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, दैट विल बी योर आंसर। आवर कॉमन एंसेस्टर लाइक चिंपैंजीज एंड ह्यूमंस, माना गया है कि उनका एक कॉमन एंसेस्टर था 8 बिलियन ईयर एगो। So that is it for living and non-living components बेटा। So learn the difference between living and non-living from the notes जो मैंने आपके पास सेंड किए हैं। So thank you so much.